आज के टाइम पे जो थोड़ा अभी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया स्टडी का, तो मतलब मैंने अभी तक अपनी जितनी स्टडी की है प्राइवेट कहीं पे मतलब मैंने स्टडी नहीं किया। फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब वो दिखा नहीं था तब। 5 मौसी है और एक मामा है, तो फंड्स का मतलब मोस्ट ऑफ मामा मौसी ने ही वो किया है। कभी भी कुछ दिक्कत है मामा को फ़ोन करो, मामा कुछ कर दो यार ऐसा करके। मतलब अभी तक मतलब मामा का बहुत रोल रहा है। सो आई सीन वन डिफरेंस, लाइक कुछ तो डिफरेंस है। मतलब मैं गांव में पढ़ रहा हूँ, मतलब दे आर मतलब गुड एट फाइनेंस दैट, सो दे आर उनके बच्चे जो है वो बाहर पढ़ रहे हैं। कि उन्होंने बोला कि आप सिर्फ पे लाइक 200 पर मंथ, इट्स लाइक नथिंग, 200 पर मंथ मैं आपके बच्चे को पढ़ाऊंगा ऐसे करके। I can say you, I am so blessed. I feel so blessed having such parents, such grandparent that they are still supportive. आज भी मैं अगर मेरे एग्ज़ाम है, मैं दादाजी को कॉल करती हूँ या मेरा कुछ भी मेरे कॉलेज में चलता है, तो दादाजी पहले ये पूछते हैं कि पढ़ाई अच्छी चल रही है ना। चूजिंग लॉ एज एन आई एम द फर्स्ट पर्सन in my whole family who has chosen this field, and I think it is not very common. So it's a 5-year course. मेरे रिलेटिव सुनते ही ऐसे एकदम शॉकिंग एक्सप्रेशंस दे देते हैं, अरे बाप रे 5 साल, इतने साल पढ़ के क्या करेगी तुम। अभी हो गया है, एज एन अभी आप उसी पिछड़ी सोच को जकड़ के रहोगे, नहीं लड़कियों को आप जीने दोगे, तो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क। Are you ready to take your academic journey to the next level? Do you want to be part of a program that celebrates and supports your hard work and dedication? How would receiving a significant scholarship impact your future? Hi, I'm Jia. Welcome to the podcast Reliance Foundation's Scholar Bhava. I'm here to take you through an inspiring journey of students who have benefited from Reliance Foundation Undergraduate Scholarship Program. The Reliance Foundation is dedicated to empowering students from all backgrounds, helping them reach to their full potential and excel academically. Whether your passion lies in science, the arts, technology, or any other field, this scholarship is your gateway to make significant strides. This is part of Reliance Foundation's 2022 commitment of 50,000 scholarships over 10 years. With the aim to nurture aspirations and celebrate excellence, this year 5,100 scholarships are open, which will be awarded on merit cum means basis. For undergraduates, 5,000 scholarships up to rupees 2 lakhs each, and for postgraduates, 100 scholarships up to rupees 6 lakhs each are waiting. Applications are invited from undergraduate and postgraduate students enrolled in the first year of their respective program in any location across India. Students can apply online through www.scholarships.reliancefoundation.org. Last date to apply, October 2024. Great things come from hard work and perseverance. No excuses. The students gathered here today are living examples of how dedication can lead to outstanding achievements. Welcome to Reliance Foundation podcast Scholar Bhava. मेरे साथ इस वक्त है अखिल. From doing odd jobs to make ends meet to now pursuing MBBS at AIIMS Rajkot, Akhil Sawant has come a long way. Today we will know more about his inspiring journey. And I have Ruchita Rajpurohit. Ruchita is pursuing law at Christ University, Pune. She credits her successes to 2 things: her supportive family and the Reliance Foundation Undergraduate Scholarship. The quality of gratitude along with hard work make her unstoppable. Let's explore her journey as well today. Welcome to Reliance Foundation podcast Scholar Bhava. तो सबसे पहले tell us about आपकी जर्नी, आपकी चाइल्डहुड, कहाँ से हैं आप? So I am from Gujarat, Amreli district, which is known for the Gir. The Asiatic lions are found only there, and I just live just near the Gir National Park. Wow. And in my family we are my mother, my father and my twin brother. तो मदर का जो मतलब जो चीज़ होती है ना, मतलब सारा जो मैं मोस्ट ऑफ द क्रेडिट है वो अपनी मदर को दूंगा। फादर को भी दूंगा लेकिन मदर को थोड़ा ज़्यादा दूंगा, क्योंकि वो जो है मतलब 7th क्लास तक ही पढ़ी है, आई थिंक 7th क्लास तक। लेकिन जो उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उनकी जो मतलब थिंकिंग लेवल था, सो वो मुझे अभी रियलाइज़ होता है। तो उनके लिए मैं अभी यहाँ से भी थैंक यू बोलना चाहूँगा मम्मी को। और पापा है जिन्होंने मतलब बहुत हार्ड वर्क किया है। व्हेन माय फादर वाज लाइक 10-12 ईयर ओल्ड, माय ग्रैंडफादर लेफ्ट, एंड उसके बाद मतलब पापा ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो वो जो ट्रेट है ना, वो मेरे को पास आउट किया कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी कैसे है। तो उसी वजह से मतलब सिचुएशंस की वजह से, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, कंडीशंस की वजह से मतलब जो स्ट्रेंथ मिले, इट इज़ 10 years आई एम नॉट एट होम लाइक इन हॉस्टल। सो
most of the things I have seen. One thing I would like to, one thing is that कि जितना आपके सामने मतलब वो आएगा ना कुछ बैरियर, सो दैट मेक्स यू, मतलब बुक में वो लाइन सबने पढ़ रखी है कि भाई चैलेंजेस मेक यू गिव्स यू स्ट्रेंथ, बट वो लाइन सफिशिएंट नहीं है, लाइक मतलब समझ सब लेते हैं. तो चीज़ ये है कि मतलब जो बैरियर आया, फिर हम रियल में हम जब उस चीज़ का वो सब लाइक फेस करते हैं तो वो एक माइंड में कंसोलिडेशन हो जाता है कि इस चीज़ को ऐसे हैंडल करना है. तो वो चीज़ है. और मैं मतलब बैकग्राउंड बताऊँ तो एक छोटा सा गांव है, लाइक पॉपुलेशन 3-4 हज़ार है. मतलब जब मैं छोटा था तब, गांव का नाम है सरसिया गांव है, अमरेली डिस्ट्रिक्ट में ही है. और मतलब वहाँ से फिर लाइक गिर स्टार्ट हो जाता है. आप उस गांव से हैं, तो यू नो फाइनेंशियली जब कहें तो स्टडीज में डिफिकल्टीज आती हैं, स्ट्रगल ज़्यादा हो जाते हैं. लोग आप ऑब्वियसली आपका फैमिली भी है तो कहते हैं कि नहीं बिजनेस में चले जाओ, यू नो उस टाइप की चीज़ें होती हैं. आपने एज इन विलेज में क्या क्या स्ट्रगल फेस किए हैं? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू जस्ट गिव यू आउटलाइन. You think a small child is there, like you can say 5 year to 6 year old. He is just living in village, so he is going barefooted. Just is one polythene is there and one book is there, or barely one slate is there. So this boy, see the transformation. Some years before, like in 2010, this boy is going to the school. You imagine one transition when the like we के पर्दा चेंज होता है. The boy is coming out as in white apron and one stethoscope. It gives me, when I think, it gives me goosebumps like that. Even So I'm getting goosebumps. this is the outline. So in विलेज में अगर बात करूँ कि मतलब फाइनेंशियल कंडीशन तो ये है कि मतलब जैसे कि आज दोपहर को कुछ खाना है तो लाइक 5 रुपीज़ की चटनी आ रही है, थोड़ा सा तेल आ रहा है. मतलब अभी some things have got better, but at that time लाइक मम्मी यूज टू सेंड मी लाइक बेटा जाओ 5 रुपये का धनिया ले आओ, 5 रुपये का ये लाओ, देन सब्जी बन रही है, फिर कल का कल देखेंगे. मतलब वहाँ से मतलब जो स्टार्ट किया ना, तो मतलब सब कुछ देख लिया. मतलब गांव में फाइनेंशियल कंडीशन की अगर बात करूँ तो मतलब डिपेंडेंट रहता है सब पहले कि पापा आज काम पे गए तो कुछ होगा, इस महीने कुछ आया. तो मतलब स्टडीज़ में क्या था कि मैं मतलब आज के टाइम पे जो थोड़ा अभी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया स्टडी का, तो मतलब मैंने अभी तक अपनी जितनी स्टडी की है प्राइवेट कहीं पे मतलब मैंने स्टडी नहीं किया. मोस्ट ऑफ द थ्रू द लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स हु हेल्प मी टू जस्ट लाइक अचीव दिस. सो गांव में मतलब 1st to 5th क्लास प्राइमरी स्कूल आप जाते हो, बस आपको ABCD सिखाई जाती है. और वहीं मतलब एक मतलब वो कुछ एक्सपोजर नहीं मिला था भाई सिटी में ये है आपको मतलब कैसे आगे जाके है. तो गांव में 1st to 5th क्लास आई हैव स्टडीड देयर. फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब वो दिखा नहीं था तब, क्योंकि 1st to 5th you need nothing, like you need one slate, one pen and that's all. But when after 5th class my one teacher is I still remember, उन्होंने मतलब एक बार एक होता है ना कि आपको दिखता है सामने, कि उन्होंने दिखाया कि बेटा ये अभी तक तो ठीक है, बाहर सिटी में और बाहर वर्ल्ड में क्या चल रहा है. तो एक इनसाइट दिया उन्होंने. और मदर का तो हर जगह रोल है ही. मतलब उन्होंने मतलब बहुत आगे तक का उस टाइम ही सोच लिया था कि मतलब बेटे को बनाना है, मतलब कुछ बड़ा होना है, डॉक्टर बनाना है, ऐसा सोच रखा था उन्होंने. तो मतलब उन्होंने बैक ऑफ द माइंड उनके चलता रहता था कि क्या करना है, बेटे को अब कहाँ भेजना है, क्या है सब. बाकी सब मतलब रिलेटिव्स का भी बहुत रोल रहा है. लाइक मेरी आंट्स मतलब 5 मौसी है और एक मामा है, तो फंड्स का मतलब मोस्ट ऑफ मामा मौसी ने ही वो किया है. मतलब उनको मतलब बिग थैंक्स टू देम. लाइक कभी भी कुछ दिक्कत है मामा को फ़ोन करो, मामा कुछ कर दो यार ऐसा करके. मतलब अभी तक मतलब मामा का बहुत रोल रहा है और मतलब मौसी लोगों का भी रोल रहा है. तो रियलाइज हुआ कि यू नो आपको एजुकेशन में आगे बढ़ना है और यू नो कुछ बनकर दिखाना है. हाउ डिड यू रियलाइज दैट, बिकॉज यू नो टिल 5th you didn't have too much of exposure, okay, and your mom had some vision for you, but when did you realize that you want to be something in life? Like when जब मैं छोटा था तो वी गो टू मैरिजेज एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट. तो वहाँ मतलब रिलेटिव्स के बच्चे आते हैं. सो आई सीन वन डिफरेंस, लाइक कुछ तो डिफरेंस है. मतलब मैं गांव में पढ़ रहा हूँ, मतलब दे आर मतलब गुड एट फाइनेंस दैट, सो दे आर उनके बच्चे जो है वो बाहर पढ़ रहे हैं. तो एक कुछ तो मेरे को डिफरेंस लगा कि यार मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ तो है जो मिसिंग है, जो मतलब बाहर जो है उधर मिल रहा है ऐसा करके. अगर मतलब यहीं पे कंटिन्यू किया
तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा दूर तक मैं जा पाऊँगा। तो ऐसा मतलब वहाँ से एक लगा कि नहीं, समथिंग एक्स्ट्रा और समथिंग ग्रेट आई नीड टू डू। तो वहाँ से मम्मी को मतलब मम्मी ने सोच रखा था इसको बाहर भेजेंगे, तो वहाँ एक की रोल प्ले किया है। मतलब JNV नवोदय विद्यालय होता है, तो मतलब उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और उसमें मतलब लाइक पूरे डिस्ट्रिक्ट में से 80 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। लाइक एक गांव में से एक एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत मुश्किल था। वन टीचर वॉज देयर, ही यूज्ड टू लाइक नाउ आई एम गोइंग टू वन स्टोरी मोड, लाइक अब थोड़ी स्टोरी है। तो उसमें क्या होता था, मेरे गांव से एक गांव दूर है, लाइक 50 किलोमीटर है। तो मतलब उस जो एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो मतलब ऐसे नॉर्मल तो तुम खुद से नहीं कर सकते। तो वो एक टीचर थे, ही यूज्ड टू टीच लाइक दिस थिंग्स, क्योंकि उस एग्ज़ाम का अलग पैटर्न होता है थोड़ा। तो मतलब अब गांव में वो है नहीं, और उनका कोचिंग होता है मतलब 1 घंटा वगैरह, तो फीस के भी पैसे नहीं है। तो मम्मी ने रीच आउट किया उनको कि बेटे को पढ़ाना है ऐसा करके, लाइक नथिंग, सिर्फ गए और बेटे को पढ़ाना है ऐसा करके। तो वो मतलब इतने अच्छे या गुड ग्रेड बोल सकते हो उनको, कि उन्होंने बोला कि आप सिर्फ पे लाइक 200 पर मंथ, इट्स लाइक नथिंग, 200 पर मंथ मैं आपके बच्चे को पढ़ाऊँगा ऐसा करके। सो क्या होता है, अब सुबह उनका 8 बजे वो हो जाता है, चालू हो जाता है उनका जो लेक्चर वगैरह है 8 से 9। अब हमें सुबह उठना है, मम्मी को खाना बनाना है, बाकी सब काम करने हैं और 8 बजे पहुंचना है उधर। तो बाकी मौसम तो हमेशा सेम नहीं होता, बारिश आ रही है, कभी ठंडी है। तो लाइक 5 बजे उठाती थी मम्मी, फिर सुबह 5 बजे कोई सा भी सीज़न है वो नहीं देखना है। लाइक और गांव में तो होता क्या, भैंस वगैरह होती है, उनका सब काम करना है, गाय भैंस वगैरह। तो मतलब वहाँ से स्टार्ट होता है, मम्मी उठाती है 6 o'clock और फिर खुद का सब काम ख़त्म करके मैं उठाती है। फिर लाइक पापा कभी ले जाते हैं, कभी मम्मी ले जाती है। तो अब बस पकड़नी है, समटाइम्स बस कब चली जाती है तो कुछ और देखना है। गाँव मतलब एकदम आप सोच सकते हैं जंगल स्टार्ट हो जाए वहाँ, मतलब कुछ ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं होता है। फिर वहाँ से वहाँ पहुँचना है, फिर 1 घंटे मतलब अब मम्मी कहाँ जाएगी 1 घंटे, सोच सकते हैं। अब कोचिंग में तो हम गए, अब 1 घंटा मम्मी को वेट करना है। सो आई स्टिल रिमेंबर शी यूज्ड टू वेट ऑन बस स्टैंड्स, लाइक पीपल यूज्ड टू आस्क माई मदर व्हाई यू आर हियर डेली। सो शी मतलब इस टाइप की सिचुएशन तक आ गई थी। पापा कभी छोड़ देते, कभी मम्मी। तो पापा का तो ठीक है, मतलब कहीं पे जाके वो तो चलता है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, वहाँ से बहुत एक बूस्ट मिला कि भाई इस एज में मतलब दिख गया कि यार अब तो कुछ तो करना बनता है ऐसा करके। या स्टिल आई रिमेंबर, अभी भी मतलब मम्मी रात को कॉल करती है कि बेटा अगर 2 बजे उठा देना, 3 बजे, मतलब वो सिलाई का काम करते हैं, टेलर वर्क। तो वो मतलब मुझे भी सिखा दिया, वो भी करते हैं, मतलब रात जाग कर। मतलब अभी भी, अब थोड़ा मैंने बोल दिया अब ठीक है, अब थोड़ा कम कर दो ऐसे, लेकिन उनका मतलब वही अभी भी डेडिकेशन वही है। मेरा थोड़ा लो हो जाता है लेकिन उनका लो नहीं होता है कभी। तो वो एक मदर का रोल उन्होंने मतलब बेस्ट प्ले किया है। आपके बारे में बताइए। यस, सो मेरे नाम से आप लोगों ने ऐसे जान लिया होगा थोड़ा बहुत, राज पुरोहित। आई एम फ्रॉम राजस्थान। बेसिकली आई वुड से प्रिसाइजली कंजर्वेटिव राजस्थानी फैमिलीज, बिकॉज एवरीवन नोज। तो हाँ, मेरे पिताजी जो हैं वो 30 साल पहले राजस्थान से माइग्रेट होकर मदुरई आए, जो तमिलनाडु में है। एंड ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस एट द एज ऑफ 21. So he was very young. He started his business of gift and toys, and he was the first in our all relatives to start such kind of business. It is different. So he took the step, but because of that, he could not complete his education properly. He was very brilliant. He got very good grades in his 10th. But then he could not pursue his studies because of some reasons. So मेरे पिताजी ने सिर्फ 10th तक पढ़ाई की है और मेरी मम्मा ने 12th तक। तो एज आई टोल्ड यू, राजस्थानीज इन दोनों की शादी बहुत जल्दी हो गई। माई डैड वॉज 21 एंड माई मॉम वॉज जस्ट 18, दे गॉट मैरिड। तो उस टाइम पे क्योंकि ऐसा था, मेरे नाना जी भी, कि मेरी मम्मी भी, शी वॉज वेरी ब्रिलियंट इन हर स्टडीज़, शी टॉप्ड हर स्कूल थ्राइस। तो बट देन नाना जी का यही था सोच के बच्ची बड़ी हो गई है, 18 साल का हो गया, मतलब बिकॉज दैट वाज द लीगल एज। अगर वो नहीं होती तो पहले ही शादी हो जाती, क्योंकि दादी नानी इन सब की शादी बहुत पहले हो चुकी है। तो 18 होते ही 12th बेयरली उन्होंने कंप्लीट की थी, रिजल्ट्स भी नहीं आए थे, उनकी सगाई हो गई और शादी भी हो गई। तो दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन वाज देयर, जहाँ पे आज भी क्योंकि अभी मार्केट एरिया में, एज एन मैरिज मार्केट में, बेयर मिनिमम इज ग्रेजुएशन। तो अभी लड़कियों को 12th से ग्रेजुएशन कराते ताकि उनकी शादी हो जाए।
तो मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव्स भी ऐसे ही हैं जिनको 12th ख़त्म एज इन ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते सगाई शादी सब हो चुकी है. सो या आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मदुरई. आई हैव 2 siblings, दीदी और भैया. Didi is doing research work right now. She has been one of my greatest inspirations because she was the one who took the step to go out of Madurai and pursue something different. She has done her honors in political science and she has been a gold medalist in that. Wow. Yeah. So she's been one of the greatest inspirations I've had. पापा मम्मी दादाजी मेरी फैमिली के सोच सकते दादाजी एज एन ही मस्ट हैव हैड अ वेरी कंजर्वेटिव environment. ऐसा हमको पता चल जाता है एज एन वॉट एवर आई सेड नाउ. बट माई ग्रैंड फादर आई डोंट नो हाउ ही इज़ वेरी डिफरेंट. He still gives priority to studies, education. My dad, my mom, my grandfather, all of them, they give first priorities to education and then marriage and everything. वो सब बाद की देखी जाएगी. तो मेरे दादाजी जो हैं उन्होंने भी मेरी दीदी को या मुझे या मेरे भाई को कभी नहीं रोका. Very big inspiration, and that your grandfather always encourages you to pursue studies, though environment around you has not, like, as far as girls are concerned, they don't really go so far with studies because they study to get married. Yeah, not a at minimum all, of yeah. graduation is required for you Yes. to qualify for marriage. Imagine. Yeah. So there's this thing. With the environment like this, how were you able to change that mentality, and how your family supported you in that? So I'll tell you a base story. कि girls are not even allowed to dream. So about their studies or education. So if they're not even about to, as in they're not even able to dream, तो उसको पूरा करने की बात तो छोड़ ही दो. बहुत दूर की बात है वो. लेकिन मेरे दादाजी की एज एन आई कैन टेल यू मेरे दादाजी की जो फैमिली एज एन उनके ब्रदर की फैमिली आई हैव सीन देम. They are my relatives. I've seen them closely. They are also in Madurai. I've seen their family माहौल as in उनके family का माहौल कि बस पढ़ाई करो शादी कर लो. उनके दिमाग में बचपन से यही डाला है कि आपको बड़े होकर शादी करनी है बस. मतलब 12-13 साल के हैं और उनको ये सब बातें बोली जाती है पहले से. ऐसा वो ब्रेन फीड किया जाता है कि आपको शादी करनी है आगे जाके. तो आप दूसरा तो कुछ सोचो भी मत, रहने दो. आप घर का काम करना सीख लो, रोटी बनाना गोल बनाना सीख लो, बाकी सब्जी अच्छी बनाना बाकी सब सीख लो. And they were your cousins basically. Yeah, they were Did my you ever talk to cousins. your cousins about? Well, most of my cousins. I am the youngest in my whole family. तो I have just started my studies. तो इतना मौका मिला नहीं. अभी उनको शादी हो भी गई है काफ़ी सारे लोगों की. तो उतना वो आया नहीं है. But then yeah, my first cousins, I have spoken to them as in they also somewhere they wanted to pursue more, but then they could not because of the family. As in I can say you, I am so blessed. I feel so blessed having such parents, such grandparents that they are still supportive. आज भी मैं अगर मेरे एग्ज़ाम है मैं दादाजी को कॉल करती हूँ या मेरा कुछ भी मेरे कॉलेज में चलता है तो दादाजी पहले ये पूछते हैं कि पढ़ाई अच्छी चल रही है ना, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, मार्क्स पढ़ाई एज एन प्रायोरिटाइज पढ़ाई, उसके बाद बाकी सब तो होता रहेगा, वो सब देखी जाएगी, बाद की बात है. और चूजिंग लॉ एज एन आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माई होल फैमिली हु हैज़ चोजन दिस फील्ड एंड आई थिंक इट इज़ नॉट वेरी कॉमन. एक तो ग्रेजुएशन बेयर मिनिमम और मेरा जो कोर्स है वो 5 year कोर्स है इंटीग्रेटेड BA LLB ऑनर्स. सो इट्स अ 5 year कोर्स. मेरे रिलेटिव सुनते ही ऐसे एकदम शॉकिंग एक्सप्रेशंस दे देते, अरे बाप रे 5 साल इतने साल पढ़ के क्या करेगी तू. तो आई एम यूज्ड टू listening all these things. तो लेकिन never in my whole life as in I've heard this from any one of my closed families as in grandparents or anyone. तो हाँ, as I told you कि I got this scholarship from the Reliance Foundation, the undergraduate scholarship. This thing I guess has motivated me to be more self-confident and I hope that listening this story हमारी relatives, हमारी family के और भी लोग थोड़े encourage हो कि थोड़ी इनके जैसी सोच रखो, थोड़ा खुलापन रखो. और अभी हो गया है एज एन अभी आप उसी
पिछड़ी सोच को जकड़ के रहोगे, नहीं लड़कियों को आप जीने दोगे, तो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क, बिकॉज नाउ एट दिस मोमेंट, एट दिस स्टेज, आई डोंट थिंक कि देर इज as such difference between boys and girls. Yes. So yeah, and also my brother has done psychology, BSc psychology. तो उनका भी यही था. My brother has also gone out of the city, Madurai, and there also, क्योंकि लड़कों को भी हमारे यहाँ पे 8th या 9th से शॉप पे बिठा दिया जाता है ताकि बिजनेस में कंट्रीब्यूट करे, और उनका भी दिमाग पहले से ये हो कि आपको बिजनेस ही करना है और कुछ नहीं करना है. तो ये एक मेंटालिटी भी है. तो लेकिन ना मेरे पापा ने कभी मना किया, ना मेरे दादाजी ने कभी मना किया कि भाई अच्छा इनको पढ़ने का मन है, अगर आप करो, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी, बुक लाई आप दो, आपको पूरी छूट है. ये मुझे मेरे घर में मिली है और मैंने क्लोजली देखा है दूसरों के घर में जो नहीं मिली है. So yeah, so this is, I guess, my backstory. Okay. So you told me about Reliance Foundation undergraduate scholarship. Yes. How this really changed your life. सबसे पहले tell me कैसे पता चला? How did you come to know about this particular scholarship? तो मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था. I was in my college. मेरी बहन ने मुझे कॉल किया and she was like, listen, I found something. This Reliance Foundation, there is the scholarship undergraduates के लिए, and this is for first years. And I have applied for you and I'm sending you it through the mail. तुम पूरा उसका जो फॉर्मेलिटीज़ है पूरा कर दो. तो आई वाज लाइक ओके. और फिर मैंने जब देखा उसमें उसका बेसिक था कि आपको एक टेस्ट देनी. तो देयर वाज दिस एप्टीट्यूड टेस्ट वी हैड टू गिव फॉर गेटिंग इनटू दिस स्कॉलरशिप, फॉर गेटिंग सेलेक्टेड इन दिस स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट. तो इट वाज नॉट समथिंग कि एकदम से आप बस फॉर्म फिल कर दो, ऐसा कोई छिट्टी निकाल के वो लोग सेलेक्ट कर लेंगे. आप अगर मेरिटोरियस हो, आप वो एप्टीट्यूड टेस्ट पास करते हो तो ये आपको मिलेगी. तो मैं थोड़ी सी नर्वस भी थी, और क्योंकि रिलायंस फाउंडेशन ये कर रहा है, मतलब दिस इज़ अ बिग थिंग. बहुत सारे लोगों को पता होगा ये. Yes. और बहुत सारे स्टूडेंट्स दे विल अप्लाई फॉर इट, और मेरा उनमें से नंबर आना इज़ लाइक, आई डिडंट थिंक आएगा भी, बट आई हैड अ होप कहीं. तो माई सिस्टर एनकरेज्ड मी कि नो यू शुड गिव इट, यू शुड ट्राई फॉर इट, स्टडी थोड़ा बेसिक एंड एवरीथिंग. So it was the day of the aptitude test and I was a bit nervous. I had a event in my college. After that I had to do this. So event में भी पूरा टाइम मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि आज टेस्ट है, मुझे क्या करना है. The moment I went as an eye into the test, I was like okay, इतना बुरा भी नहीं है, it's good, आसान है. तो टेस्ट तो हो गया. उसके बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आसान मुझे लगा है, और भी बच्चों को आसान लगा होगा. अभी कैसे लेंगे? एज एन मुझसे भी और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे, यहाँ पे एम्स के बैठे हैं ये. तो मुझे ये भी लगने लगा कि अरे चांस तो मुश्किल ही है. फिर भी मैंने फैमिली को वगैरह बताया कि चलो एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया. मम्मा वाज लाइक कि नहीं हो जाएगा तेरा, तो होशियार है. तो मेरे पेरेंट्स का ये है कि वो कभी भी, आई गेस सारे पेरेंट्स का होता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स कभी भी, उनको ये सुनना भी नहीं पसंद है कि अगर मैं खुद भी अगर थोड़ी डिमोटिवेट हो जाती हूँ और मैं बोलती हूँ यार मुझे तो नहीं आता, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मेरे मम्मी पापा दोनों बोलते हैं ऐसा कैसे बोल सकते हो, होगा तुमसे कैसे नहीं हो पाएगा, तो किससे होगा. तो ये मेरे पेरेंट्स की हमेशा रही है कि उन्होंने हर बार एट माई लोएस्ट पॉइंट्स मोटिवेट किया है. आई गेव माई क्लैट का एग्ज़ाम फॉर दिस थिंग, NLU में एडमिशन्स के लिए. तो आई गेव क्लैट की एग्ज़ाम. इट वॉज दिस टाइम व्हाट हैपेंड वाज इट वॉज इन December, विच वॉज इन बिटवीन माई प्री बोर्ड्स. हमेशा ये लोग थोड़ा बाद में रखते हैं, एज एन आई गेस अप्रैल मई में रखते हैं. तो वो क्या होता है कि आपकी बोर्ड्स हो जाती है एंड देन यू हैव अ गैप ऑफ 1 month टू जस्ट फोकस ऑन क्लैट. दिस टाइम दे जस्ट प्रीपोन्ड एडवांस द डेट्स. सो मुझे प्री बोर्ड्स का भी था क्योंकि उस टाइम पे कोविड भी चल रहा था. तो एज डन इन माई प्रीवियस 10th क्लास, प्री बोर्ड के नंबर लेके उन्होंने पास कर दिया. तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे 12th के प्री बोर्ड्स के नंबर अगर ये लोग ले भी ले तो ख़राब आए. तो आई फोकस्ड मोर ऑन माई प्री बोर्ड्स इंस्टेड ऑफ द क्लैट थिंग. तो आई कुड नॉट क्लियर क्लैट. उस पॉइंट पे भी माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव. मैंने कहा एक ही एग्ज़ाम है ना, एज एन इतनी सी एग्ज़ाम है, इसमें नहीं हुआ है, और भी कॉलेजेस हैं. हमेशा मेरे पेरेंट्स एज एन सपोर्टिव रहे हैं. तो बैक टू द UG स्कॉलरशिप थिंग. So we were waiting. I used to check my mail every day
every day I used to do this. I used to call people as in from the Reliance कि मुझे scholarship का as in results कब आएंगे. तो one day I got the mail. I was like, oh my god, I could not believe my eyes. I was so overwhelmed. I had mixed emotions. I felt like crying. I was so happy. I wanted to call my parents and then tell them that I got the scholarship. I took a screenshot, sent it in my family group. Wow. Yeah. Okay. And then it was like they also got shocked. They were like so happy. My mom called and she was like, oh my god, congratulations बेटू, तुमने तो कर लिया, मैं तो बोला ही था तुम कर लोगी. तो it was a very happy moment for every one of us. I video called them instantly and then we were also happy, excited. My brother, my sister, they were like, oh my god, you've achieved something. So Your sister must have taken a lot of credit for this. I gave her the credits, of course. She deserves Yeah, it. she deserves. So they all were so excited and then I was like कि चलो अभी scholarship तो मिल गया है. And at that moment वो जो scholarship मिला ना, it was not something more about monetary thing. It was something that gave me a self-confidence that yes, I can do something. I felt like this is my self-earned thing that I've put in my efforts. I then started valuing my efforts. कि यार मैंने इसको एग्ज़ाम को दिया है, उसके कारण मुझे ये स्कॉलरशिप मिली है. तो वो मुझे जो कॉन्फिडेंस है ना, वो मेरा बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है इसके कारण, इस रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के कारण कि यू हैव डन, यू कैन डू थिंग्स. सो या. What more reactions did you get in family group? Because the way they react to your law thing is so weird. Oh, my external family groups. Well, yeah, they congratulated. I did not get any calls actually. Probably they must be jealous or I don't know. So yeah, they just congratulated on the group. That's all. Okay. So amazing, really amazing. Tell me, Akhil, how did you find out about this? लाइक व्हेन जब एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, काउंसलिंग प्रोसेस नीट के बाद टाइम था 1-2 महीने, तो उसके बाद स्टार्ट होनी थी. तो मेरे को लग रहा था कि मतलब कब कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ऐसा करके. तो सबसे पहले एज इट इज़ मामा को कॉल किया कि मामा थोड़ा धक्का मारो. तो फिर मामा से मतलब ऐसा क्या था कि मेरा भाई भी बोला पहले साथ में, उसका भी मतलब था एडमिशन है, उस ही इज ऑल्सो परस्यूइंग MBBS इन फर्स्ट ईयर. सो उसका भी था. तो अब 2 लोगों का खर्चा है. मतलब अभी तक तो कुछ पता नहीं चला था ना, क्योंकि नवोदय में थे, उधर कुछ खर्चा है नहीं, अब दिखा नहीं था. अब कॉलेज में आ रहा है, अब रियल दिख रहा है भाई दिस मच अमाउंट इज नीडेड. तो सबसे पहले भाई मैंने एस्टिमेट थोड़ा मैंने और मम्मी ने पापा ने बैठ के बनाया, इतना चाहिए यार. पता है मतलब मैं बताऊँ ना, सब कुछ मिला के घर का सब ये वो लोन भी थी पापा पे मम्मी पे, वो भी चल रहा है. तो सब कुछ मिला के वी डिडंट हैव मोर देन 30-40,000 एंड दैट्स नॉट इनफ. तो सबसे पहले ये एस्टिमेट बनाया. फिर एक मामा 1 2 3 4 5 मौसी, तो सबको बोला कि थोड़ा रेडी रहना, अभी ज़रूरत पड़ेगा ऐसा करके. तो ये सब हुआ, तो ये सब चला. अब मैं ये मतलब जब तक ये स्कॉलरशिप आई ना, मतलब रिलायंस फाउंडेशन की अंडर ग्रेजुएट जो स्कॉलरशिप है, तो वो मतलब ऐसे ही मैं हर जगह से मतलब हाथ पाँव मारो, कहीं से इधर से हो जाए इधर से हो जाए. तो ऐसे ही मतलब क्या था कि ये कोई दोस्त भर रहा था स्कॉलरशिप, उसने बोला अकेले काम कर, तू इतना उधर उधर मत जा, तेरी किस्मत में होगा तो एक आध स्कॉलरशिप हाथ लग जाएगी ऐसा करके. सो ऐसे ही रिलायंस अपनी अंडर ग्रेजुएट जो स्कॉलरशिप है वो भर दी मैंने, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म, और भूल गए. चलो देखते हैं, मतलब अभी तक मुझे उस टाइम तक कोई स्कॉलरशिप खास मिली नहीं थी. तो एक दिन मतलब ऐसे ही कुछ आया कि इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होता है, ऐसा बेसिक आइडिया था. तो बोले एप्टीट्यूड टेस्ट तो अपना मतलब बायत का खेले हुए तो बचपन से देते आ रहे. तो एप्टीट्यूड टेस्ट दिया. वो भी दोस्त ने बोला लैपटॉप जुगाड़ा दोस्त से, वो बोल रहा है मेरे को भी देना है, मैं बोल रहा मेरे को भी देना है. तो सीनियर्स वगैरह से लैपटॉप वगैरह जुगाड़ किया, मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो दिया. तो फिर वापस भूल गया. फिर एक दिन मतलब ऐसे ही कोई बोल रहा है कि मतलब रिजल्ट आया है, मतलब जो दूसरा दोस्त था जिसने मेरे को बताया था, उसने बोला रिजल्ट आया. तो उसने चेक किया, तो पूरा मतलब जो प्रोसेस हो गया था, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरा, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब हो गया, मतलब इट वॉज अ स्मूथ प्रोसेस. सो उसके बाद जो रिजल्ट आया, तो कोइंसिडेंटली उसका नहीं हुआ, मेरा हो गया.
तो मतलब उसने बताया मेरे को पहले था, मतलब उसका जो रिजल्ट है उसके पहले बताया। तो मतलब चलो मतलब रिजल्ट एक आया है, ये किसने बताया? मतलब उसने दोस्त ने मतलब उसको वहीं से तो पता चला, शायद मेल आया था वैसा, मतलब मेल वेल चेक नहीं किया था मैंने, मतलब उसमें सब आता है वैसे मतलब प्रॉपर वो सब चैनल से आता है। तो उसने बताया कि ऐसा कुछ मतलब सिलेक्शन हो गया, तो मेल वेल आया होगा, देख तेरा। तो मतलब ऐसे पूरा ग्रुप था, उसके भी दोस्तों ने भर रखा था, मतलब पूरा मतलब ऐसे पता चल जाता है आगे पीछे से। तो उसने बोला, तो मतलब ऐसे मैं देखा कि भाई चलो मम्मी को कॉल किया, मम्मी एक मौसी को बोलो आपका आज हो गया ऐसे मतलब उनको मतलब एक टाइम दिया है ना यार, कि मतलब आपको इतने टाइम में ऐसे लौटा देंगे, मतलब हाँ, उनको भी तो चाहिए होगा ऐसा करके। तो मतलब ऐसा करके जो हो गया, फिर भी मतलब इतना अमाउंट, मतलब ये बहुत मतलब ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, मतलब इतना जितना भी अमाउंट है उससे मतलब मेरी फीस मतलब खाने वगैरह के जो, क्योंकि उसमें क्या था फर्स्ट ईयर में यू हैव टू पे इन एडवांस देन यू गेट द एडमिशन। तो मतलब उसके लिए सब किया था। तो जब ये मतलब जो अमाउंट आया, तो मतलब थोड़ा सांस में सांस आई, चलो अब इट इज़ नॉट मतलब दैट मच हार्ड। तो मतलब ये जो बुक्स वगैरह का था, मतलब जो मेडिकल बुक्स होते हैं दे आर फार मोर एक्सपेंसिव, लाइक नो बुक इज़ लाइक बिलो 2000-3000। सो वो भी हुआ। तो मतलब जो ये फिर इसको एलोकेट किया भाई, इसका ये करेंगे, इतना मौसी मामा को देना है, इतना बुक्स लेना है, ये है वो है। तो मतलब जो मम्मी को कॉल किया, तो मतलब वही सब प्रोसेस चल रहा है भाई, किसको क्या करना है, मतलब और बाकी तो ठीक है। तो मतलब बहुत खुशी हुई अंदर से, मतलब मम्मी पापा को कि भाई अब इतना बर्डन कम हो गया हमारे से, मतलब उससे। तो ये एक मतलब पॉजिटिव साइन था, मतलब बहुत, मतलब मैं थैंकफुल हूँ मतलब रिलायंस फाउंडेशन को, कि जो मतलब इतना हेल्प किया। और मतलब ये प्रॉपर चैनल, मतलब मेन चीज़ है कई बार क्या होता है पहुंच नहीं पाती है, तो ये जो चैनल से मतलब कैसे भी मतलब, क्योंकि एक तो वो चीज़ मतलब पहुंची मेरे से, उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल है, मतलब लाइक एडवर्टाइजमेंट वगैरह। फिर मेरे को पता चला कि लाइक इंस्टाग्राम्स पे भी उनका, इंस्टाग्राम वगैरह जो ऐप है उसमें भी ऐड देख के भी कई लोगों को पता चला था। तो मतलब ये एक चैनल के थ्रू मेरे तक पहुंचा, और मतलब आई गॉट बेनिफिटेड। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी। I want to ask you two things. So, a friend of yours informed you about this and he didn't get selected. यस So, how was the reaction लाइक between all friends? मतलब एक मतलब क्या था, बचपन से मेरा आदत है मतलब सोशलाइज इजीली हो जाता हूँ। तो मतलब एक दो दिन में तो मतलब वो वाले दोस्त बन गए थे, अच्छे वाले दोस्त मतलब। फिर मतलब उसने बोला कि चल, मतलब थोड़ा उसको बुरा लगा होगा मतलब मेरे को बता टाइम। तो उसने बोला चल कोई बात नहीं, तेरी है मेरी है सेम है तो मतलब वो हुआ। तो उसने बताया कि चल, मतलब उसको पता था कि मतलब उसको क्या चैलेंजेस वगैरह है, मतलब उसको आइडिया था कि जो है, मतलब बाकी क्या होता है कि स्कॉलरशिप आते हैं चल आज पार्टी दे दे ऐसा करके। मतलब वो दोस्त मतलब मैं बोलूँगा कि मतलब अच्छा दोस्त है। उसने मेरे को पहले तो बताया कि ऐसा करके आया है, क्योंकि अगर एक बार डेट चली गई देन प्रोसेस कुछ होता नहीं है। तो उसने बताया, लेकिन उसने इतना वो नेगेटिव नहीं लिया, कि उसने अच्छा लगा कि भाई तू, हम दोनों मिलके ही जुगाड़ करते थे, किसी को बोल रहे यार आज इतना वो कर दे। तो मतलब उसने जो मतलब हेल्पफुल था, बहुत हेल्पफुल था, जो मतलब जो Your फ्रेंड था mom वो। worked so hard for your studies. Her reaction must be amazing. Like she must be so happy that you were able to crack this. मतलब क्या मैं बताऊँ ना, कि मतलब बचपन से मैं स्कॉलरशिप भरता रहता हूँ ऐसे में। कुछ आई तो मतलब कोई इन्फॉर्म चलो ये भर देते वो भर देते, कभी आई नहीं थी। तो मतलब फर्स्ट तो मतलब जब फ़ोन किया मम्मी स्कॉलरशिप आई है, उनको विश्वास नहीं हुआ, चलो मतलब भरने को आई होगी, उनको मतलब लग ही नहीं रहा था कभी कुछ स्कॉलरशिप जैसी चीज़ आएगी। तो मतलब उनका जो मतलब रिएक्शन था ना, मतलब बोल सकता हूँ मैं जज नहीं कर पाया जज नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो उनको मतलब पहले बिलीव नहीं हो रहा है ऐसे, मतलब कि आई है। फिर एक तरफ से वो आ रहा है कि इमोशन की, चलो बहुत खुशी हो रही कि भाई चलो अब टेंशन नहीं है बच्चों को पढ़ाने में, ये है दोनों का हो जाएगा। तो मतलब एक मिक्स सा इमोशन था। और फिर पापा को मम्मी को बताया, तो मतलब फ़ोन पे बात हुई तो ये सब मम्मी ने बोला, दैट्स इट। So Reliance Foundation undergraduate scholarship really helped you to achieve your dreams, to transform your life. It gave you such amazing experience. It gave you so much of confidence. So post you received this and you celebrated and it helped you. Did you inform your friends and have you helped others also to find about this and help them crack the aptitude test that you have to go through? So basically जब मुझे स्कॉलरशिप मिली and then after some time my friends got to know about this, I just told them casually. तो उन लोगों ने, उनका पहला रिएक्शन था अरे हमको भी बता देते, हम भी दे देते यार, ये अकेले अकेले करने की क्या ज़रूरत थी।
तो मैंने कहा कि आई डिड नॉट नो दैट आई वुड गेट सेलेक्टेड इनटू दिस एंड एवरीथिंग, बट देन या आई टोल्ड देम अबाउट द होल थिंग. सो अभी भी मैंने अभी जो जूनियर्स से मेरी बातें हुई है तो मैंने उनको बताया कि देयर इज़ दिस रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, यू शुड अप्लाई इन टू दैट. उनके एप्लीकेशंस ओपन होंगे. आई जस्ट टोल्ड देम दिस थिंग. सो या आई हैव इन्फॉर्म्ड एज एन जस्ट जूनियर्स ऑफ माइन, दे वर लाइक ओ माई गॉड 2 lakhs. दे वर सो शॉक्ड. लाइक सही तो है ना. मैंने कहा बिल्कुल सही है. आई गॉट द स्कॉलरशिप, आई एम अ पर्सन. एंड देन आई टोल्ड देम. सो जूनियर्स वर वेरी एक्साइटेड ऑल्सो. एंड या मेनी ऑफ माई juniors have I guess they have started applying for it. I did not have a word with them yet, but yes. आपने इन्फॉर्म किया? यस, मतलब जब मेरे को मतलब जो मिल गई स्कॉलरशिप तो कुछ लोग छूट गए थे कि भाई जिनको पता नहीं था ये. तो मतलब क्या होता है, एक टाइम होता है मतलब जब आप कॉलेज में जाते हो तो कोई बोल रहा है वो स्कॉलरशिप आ रही है, तो मतलब ऐसे भरते हैं लोग, मतलब फिर थक जाते हैं भाई कुछ आ नहीं रहा है. तो मतलब जब ये मैंने आई ना स्कॉलरशिप, तो मतलब कुछ लोग जो छूट गए थे उनको बोला कि आप सेकेंड ईयर में अप्लाई करो. फिर मतलब जो दूसरे कॉलेज में अदर कॉलेज में जो थे जिनको पता नहीं था उनको इन्फॉर्म किया. मतलब एक ग्रुप है उसमें बता दिया कि मतलब ये जो जिसको भी मतलब रह गया था या फिर पता नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम मेक श्योर कि तुम अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि इतने मतलब जो प्रोसेस है उसमें एनरोल कर लीजिएगा ऐसा करके. I would like to add for the reaction, my grandfather's reaction. Please tell me. Yeah, so मेरे दादाजी का reaction was the most precious reaction I got in the whole family. मम्मी पापा happy थे, वो अलग बात है. तो दादाजी को आई डोंट थिंक ही हैज़ दिस आइडिया अबाउट स्कॉलरशिप्स एंड एवरीथिंग, हाउ दिस थिंग वर्क्स. तो मैंने एक दिन बैठ के उनको बताया कि दादाजी मैंने एक एग्ज़ाम दी थी और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और आई गॉट अ स्कॉलरशिप. तो पहले तो ही कुड नॉट बिलीव ऐसा एकदम, क्योंकि द स्कॉलरशिप होल आइडिया इज़ डिफरेंट. बट द रिएक्शन ही गिव एज एन, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है जब आपके जो बड़े हैं वो अगर दे आर प्राउड ऑफ यू एंड इफ़ यू मेक देम प्राउड, वो अपने मूँछों को तानते हैं. Okay. तो वो जब उन्होंने किया, आई फेल्ट वेरी Wow. गुड. आई फेल्ट लाइक ओ माई गॉड. आई लिटरली मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे कि अभी कुछ किया है. मतलब दिस वाज वेरी गुड. Fantastic. So amazing. With the aim to nurture aspirations and celebrate excellence, this year 5,100 scholarships are open, which will be awarded on merit cum means basis. For undergraduates, 5,000 scholarship up to rupees 2 lakhs each, and for postgraduates, 100 scholarships up to rupees 6 lakhs each are waiting. Applications are invited for undergraduate and postgraduate students enrolled in the first year of their respective program in any location across India. Students can apply online through www.scholarships.reliancefoundation.org. Last date to apply is October 2024. Tell me, अगर किसी को अप्लाई करना है तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा प्रोसेस बता दो. लाइक यू नो हाउ इफ समबडी वांट्स टू अप्लाई फॉर दिस, हाउ दे शुड प्रिपेयर, व्हाट दे शुड डू, एंड यू नो हाउ द होल प्रोसेस इज गोइंग टू बी लाइक. Tell me about that. Process is very basic, very easy. It's not something very complicated you have to do. You need your basic 10th and 12th mark sheets, your ID proofs, and you have to be aware that there is going to be an aptitude test and you'll get a date and you have to prepare a bit about it. You'll have English, reasonings, logical reasonings, and quantitative. So they are very basic, which comes in most of the aptitude tests. Yeah, so that is the thing, and not much you have to worry about. It is so the portal is also very self-explanatory. You don't have something complicated, and they also have the helpline number. You can anytime contact them. Also on Sundays they pick up the calls. I have called them. Okay. Yeah, and they pick up the call. They whatever your queries are, you ask them. They'll reply you as soon as possible. And yeah, I have got a very smooth conversation with them, as in it was a very smooth process for me. It was not something very complicated, I felt. Great. Okay. Akhil, you know more about your journey. You have also you have also been into teaching to earn money. In fact, you have worked before in small ways to earn. Tell us about that journey of yours. सो 12th तक का तो मतलब जो JNV में था
तो उधर कुछ एक्सपेंसेस इतना वो नहीं था। मतलब बीच में जो लॉकडाउन वाला पीरियड था, तो जो पापा का जो काम था मतलब वो तो मैं बोल सकता हूँ तो अब बंद ही हो गया। मतलब जो हीरा गेस्ट थे उसमें स्पेसिफिक कुछ टाइप्स होते वो बंद हो गए थे। और उस टाइम पे मतलब जो टेलर वर्क था मम्मी का वो भी इतना वो चल नहीं रहा था। तो मुझे थोड़ा लगा कि नहीं अब कुछ मेरे को धक्का देना है ऐसा करके। तो फिर क्या हुआ कि टीचिंग वाली अगर मैं पहले बात करूँ तो क्या था कि भाई जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ तो एक क्या बोलते हैं एक सेंस ऑफ हेल्पिंगनेस मतलब होता है कि कोई और है तो उसको साथ लेके चलते ऐसा करके। वो एक फीलिंग हमेशा मतलब जो मेरे पेरेंट्स उन्होंने डेवलप करने में या फिर जो एनवायरनमेंट है उसने मतलब हेल्प किया वो एक फीलिंग डेवलप करने में कि कोई और है उसको साथ लेके चलते। तो लाइक एकदम स्टार्टिंग से आई यूज्ड टू टीच माय फ्रेंड्स एंड उनको मैं समझाता था। तो उनको मेरा जो वे था पढ़ाने का इट वाज सो सिंपल कि मतलब उनको तुरंत मतलब अंदर चला जाता था दिमाग में ऐसा करके कि वो ग्रेस्प कर लेते भाई सिंप्लीफाई करके कि दिस आर द थिंग्स यू टेक दिस एंड जस्ट पास। सो लाइक लास्ट नाइट मतलब जैसे 10th का एग्ज़ाम था तो एक दिन पहले मतलब मेरा दोस्त था बोल रहा कुछ बता। तो आई स्टिल रिमेंबर मैंने उसको मतलब 3 क्वेश्चन बोले। बोला तू जो भी करना है ये 3 क्वेश्चन करके चला जा, तू फिर देख लेंगे आगे। तो उसमें से सेम 2 क्वेश्चन आए और वो पास हो गया। तो मतलब अभी भी मेरे को मतलब वो याद करता है कि यार तूने मतलब वो कर दिया। फिर और जॉब्स की बात करूँ तो यही सिचुएशन चल रही थी जो अपनी कोविड टाइम वाली। और मतलब तो थोड़ा फंड्स वगैरह की ज़रूरत थी। तो फिर मैंने क्या किया कि एक ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है। तो जैसे कि मेरे गांव से 7 किलोमीटर दूर है एक छोटा सा सिटी या और उसमें से बीच में बोल सकते हो। तो वहाँ मैं गया। अब सोच सकते हो 16-17 ईयर ओल्ड बॉय है, नथिंग, उसको कुछ नहीं पता है और उसको कमाना है पैसा। और एज ए टिपिकल गुजराती ये थोड़ा इनहेरिटेंट होता है हमारे अंदर, कला बोलो आर्ट स्किल जो भी बोलो। तो मतलब मैंने एक बार देखा भाई मेन बाज़ार में गया कि दिमाग लगाते हैं कुछ। पहली शॉप पे गया मैं, बोला कुछ काम मिलेगा भैया? बोला नहीं। 10-15 रिजेक्शन मिले। फिर एक शॉप आई, मैंने कुछ ऐसे क्लासीफाई नहीं करा था, जो भी शॉप मिल जाए जो भी काम मिल जाए। तो एक यूटेंसिल्स की शॉप थी। तो मैंने बोला कि भैया थोड़ा काम मिल जाता। तो बोल रहे क्या करेगा? मैं बोला भैया पढ़ा लिखा हूँ, 9 से पढ़ा हूँ। तो उनको तो पता नहीं था, वैसे बोल रख लिया चल गिनती कर लेता है। बोला भैया गिनती कर लेता हूँ। फिर 1-2 दिन काम किया तो वही सेम प्रोसेस। अब दोपहर को मतलब क्या थोड़ा खाने का टाइम मिलता था तो आई यूज्ड टू रोम अराउंड। तो मैंने मतलब देखता था कुछ और बेटर मिल सकता है क्या। तो फिर शिफ्ट किया मैंने, कंप्यूटर शॉप पे शिफ्ट किया मैंने कि भाई थोड़ा अच्छा है, आराम वाला काम है और चलो अपने मतलब कंप्यूटर वगैरह तो स्किल वो सब तो होती है अपने पास। तो उधर स्विच किया। फिर आता इंटरेस्टिंग वाला पार्ट। उधर 2-3 दिन मेरे को काम करते हुआ है। एक दिन क्या हुआ कि चलो दोपहर को मैं खाने निकला, चलो कुछ समोसा वगैरह सस्ता सा खा के वापस चलते। तो एक स्कूल दिखा मेरे को सामने। तो पता नहीं वो थॉट मेरे अंदर आया कैसे, मैं सोचा चलो स्कूल में ट्राई कर लेते। मतलब ऐसा कुछ से मेरे में वो है नहीं कि चलो इधर नहीं जाए, वो एकदम ओपन जो भी मिल जाए। तो मैं स्कूल के अंदर गया, प्रिंसिपल के ऑफिस में गया, मैं एंटर किया। तो जाती मैं बोला सर, तो बोले क्या एडमिशन चाहिए क्या? सर क्या बात करो सर, पढ़ाना है मेरे को। तो उसने बोला मतलब कैसे, मतलब वो एक चीज़ है ना, वहाँ उनके पास बीएड वाले क्वालिफाइड है और मैं हूँ भाई एक 10th पास या फिर मतलब उस उतना एज वाला। तो मैंने वो रिक्वेस्ट करा उनको यार, मतलब फिर बोला कि मैं 9 से हूँ तो थोड़ा वजन बढ़ा ऐसे करके। तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट करा कि भैया मतलब एक चांस दे दो ना। फिर मतलब उन्होंने बोला चल तेरे को चांस दिया ऐसे करके। फिर डेमो बोला कि डेमो ले लो बच्चों के साथ। तो वो थे मतलब वाइस प्रिंसिपल वगैरह थे, तो उन्होंने डेमो लिया। तो मैं बताऊँ ना उसके बाद जो मतलब जो बच्चों को टीचर्स को इतना मतलब मस्त लगा ना जो मैंने पढ़ाया, बच्चे वगैरह कनेक्ट करे थे, हम लोग रिलेट करे थे, क्योंकि मैं तो उसी चीज़ से अभी रिसेंट ही निकला हूँ अभी उस चीज़ से, पढ़ाई मतलब उस माहौल से। तो उन्होंने मतलब बोला कि चल तेरे को दिया चांस। फिर डे बाय डे उनको 1-2 दिन में लगा कि भाई ये तो अच्छा कर सकता है ऐसे। तो मैं बताऊँ मतलब उस टाइम पे आधे दिन का मतलब सैलरी, कुछ मतलब प्राइवेट स्कूल था, इतना बड़ा भी नहीं तो कुछ खास नहीं होती, लेकिन एक चीज़ है वहाँ पे जो बीएड क्वालिफाइड वगैरह थे उनको जो सैलरी मिली थी उससे ज़्यादा मेरे को मिल रही थी ऐसा करके। तो ये एक चीज़ मतलब मेरे को वहाँ से रियलाइज हुआ कि भाई आई एम गुड एट दिस, कुछ कर सकते हैं ऐसा करके। तो उसके बाद मैं इसी चीज़ को मतलब कंटिन्यू किया, थोड़ा पढ़ाया। फिर मम्मी ने बोला कि बेटा, मतलब एक गुजराती में सेंटेंस है मतलब जो कहता है कि भाई बालक एक बार पैसा चाखी जाए ना પછી ભણે नहीं। ट्रांसलेट करता हूँ, मतलब एक बार अगर जब बच्चा है ना गुजराती बच्चा, उसको तूने थोड़ा सा पैसा दे दिया ना, खुद से कमा रहा है, फिर वो आगे पढ़ेगा नहीं, उसे उसी डायरेक्शन में चला जाएगा।
तो वो एक चीज़ वहाँ से रोक लिया मेरे को। फिर मेरे को लगा मैं तो अब सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा पैसा आ रहा है, क्या है सब, मतलब उसमें से एक रोक लिया मेरे को। फिर डायरेक्ट किया बेटा थोड़ा पढ़ाई में जाओ ऐसा करके। तो ये एक चीज़ थी, मतलब वो बीच में जो ये सब काम किया ना, मतलब तो एक इनसाइट मिल गया कि भाई क्या चीज़ें होती है मार्केट में ये वो। और दैट्स द रीज़न आई, मतलब मुझे एक इकोनॉमिक्स में भी इंटरेस्ट है और सोचा है उसके मतलब साइड में कुछ पढ़ेंगे ऐसा करके। तो वो एक चीज़ है। और बाकी आप देख ही सकते हो मतलब गुजराती इसका मतलब बिजनेस वगैरह में, तो वो भी थोड़ा सोचा है कि भाई ये हॉस्पिटल वाला फील्ड है और जो बिजनेस वाला फील्ड है उसको थोड़ा कंबाइन करेंगे आगे, क्योंकि ये तो मेरे को अच्छा लगता है ये जो अपना मेडिकल फील्ड है, मतलब एक सर्विंग नेचर वाला जो मतलब वो रहता है, लेकिन उसको एक थोड़ा गुजराती फ्लेवर देंगे ऐसा करके मैनेजमेंट वगैरह से। दैट इज़ द फ्यूचर प्लान। सो दिस वाज अबाउट द माई When I met you इंटरेस्टिंग first, जर्नी। I felt that you're so shy and you will be completing the entire interview in one line. But This I is can a part see of you have so many stories and it's so amazing. As I said in the beginning, that great things come from hard work and perseverance, and you both are so amazing. And I can see that hard work and your thought process towards education has got you here, where you have grabbed Reliance Foundation undergraduate scholarship, which is fantastic. And I congratulate to both of you for achieving this. जो भी स्टूडेंट्स आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, and they'll see your interview and they'll be very inspired by you. What one, out of all the journey that you both had was so big and so amazing. What lesson or what advice would you like to give to all the students who will see your interview? I think I would say don't be afraid. Just take the first step. Be confident. And the moment you do this, you will crack this. I'm telling you, you will crack this. And then the moment you crack it, you'll be able to prove yourself in front of everyone. जो भी वो जो ताने देने वाले relatives हैं, everyone. When you prove yourself, they'll सबका मुंह बंद कर सकते हो आप. So don't be afraid. Be confident and take this first step. I will like to add one thing. Like whenever I start something, I pick some two to three thumb rules. Like follow this, you will get through. So for anyone who is like from background like me, so you don't think like in a large scale. So for if you are in a village and हमेशा मतलब एक चीज़ याद रखना, मनी इज़ नॉट द प्रॉब्लम। कहीं पे भी हो आप, मनी इज़ नॉट द प्रॉब्लम। मनी मतलब वो नहीं हो सकता कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो दो रूल बोलूँगा कि एक तो फर्स्ट एज सी डिस्क्राइब कि फर्स्ट स्टार्ट करो। और दूसरा मतलब एक चीज़ होता है कि कोई भी कुछ बोल रहा है ना, उसको सुनो। मतलब मेरी मम्मी कहती है, गुजराती में बोलूँगा कि સાંભળવાનું બધાયનું, કરવાનું આપણું। लेकिन हिंदी सुनना सबका है, करना अपने का है। लेकिन कई बार जो कोई कुछ चीज़ बोल देता है ना, वो इधर हिट करता है या फिर कुछ इधर हिट करता है। तो जो इधर हिट करता है ना, वो वाला ले लो, इधर वाला छोड़ दो। तो मतलब वो चीज़ है ना कि मतलब कोई सुनो सबका, मतलब कोई भी कुछ बोल रहा है ना, उसको मतलब वो मत करो, सुन लो कि भाई कोई क्या बता रहा है। अपने टीचर से, क्योंकि जो अपनी जो एज है ना, उसमें बच्चे मतलब वो इतना सीरियसली लेते नहीं है टीचर्स को। क्योंकि एज मैं खुद टीचर था, मेरे को एक्सपीरियंस हो गया हो। तो मतलब एक तो वो टीचर्स की मतलब वो टीचर्स की या फिर अपने बड़ों की जो भी कोई एडवाइस दे रहा है, तो उसको फॉलो करो। मतलब क्या हुआ, दो रूल, एक तो भाई स्टार्ट करो, और दूसरा की एडवाइस लो और फॉलो करो, एग्जीक्यूट करो। दैट्स द थिंग। Ruchita, also, to all the female who are listening to you, who will be seeing your interview, what advice would you like to give them that that females should definitely look into their careers, and this will definitely be a step forward for them to get the scholarship? And if they get the scholarship, this is so inspiring, just the way it inspired you. So what advice would you like to give to all the women out there? Yeah, so this advice, I don't think this is only for women. This is majorly for their parents as well. That I was, fortunate enough to have such parents. As in, I'll tell you when I speak about conservative thinking, इतना conservative है कि when we used to wear jeans and t-shirt at our home, our relatives, when they see us, they used to comment कि ये कोई कपड़े होते हैं, सलवार सूट पहनो, ये कोई कपड़े होते हैं क्या, ये तो लड़के वाले कपड़े हैं, ये कैसे पहन रहे हो तुम। तो इतना कंजर्वेटिव थिंकिंग है उनका। उसको छोड़ के एज इन माई
grandfather, my parents and everyone, as in my grandparents, उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि इसमें कुछ गलत नहीं पहना है इन्होंने. तो वो जो दे जस्ट वेंट अगेंस्ट एवरीथिंग टू सपोर्ट अस. दे माई पेरेंट्स एंड एवरी वन, दे एंकरेज मी टू ड्रीम. उन्होंने मुझे सपना देखना सिखाया है, कभी रोका नहीं उन्होंने. तो ये तो एक तो पेरेंट्स के लिए हो गया कि आप अभी आपको आपकी पुरानी सोच छोड़ देनी चाहिए एंड यू हैव टू, आपका खुद का अगर जो पास्ट है उसको छोड़ दो एंड यू एंकरेज योर स्टूडेंट्स, योर चिल्ड्रन टू ग्रो. And second things, for the female, I think I'll be glad if seeing this interview, there are female students getting encouraged and there are parents getting encouraged to make their children get involved into such thing. So I'll be glad that I was a part of it. And choosing law as a career also, this was one of the parts, because मैंने अपनी society को इतना closely देखा है कि जहाँ पे औरतों को बहुत dominate किया जाता है. This is a patriotic society. तो this was one of the reasons I chose law, कि ये जो है ना, इसको कहीं ना कहीं से निकालना है. और जब मुझ में वो ताकत आएगी तभी मैं किसी के अगेंस्ट बोल पाऊंगी. एट दिस मोमेंट आई एम नो वन टू स्पीक अबाउट एनीथिंग. मेरी कोई सुनेगा भी नहीं, क्योंकि व्हाट हैव आई डन? इफ़ आई एम डूइंग समथिंग, इफ़ आई हैव अ पावर, मेरी लोग सुनेंगे भी, मानेंगे भी. तो टू गेट दैट पावर यू हैव टू टेक दैट स्टेप एंड यू हैव टू हैव दैट करेज. आपको बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बट यू हैव टू हैव दैट स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्पिरिट टू ब्रेक देम and move forward. And they have to be independent. Yes, they have to be independent in this society, because If they want to survive, they want to really live their life, they Yes. have to be independent. Yes, for sure. Like, I've seen you, as in you are also doing a very great job as an independent woman. I'm admiring everyone, as in you majorly. So as in you're so confident, and that confidence, I think it came when you got the exposure. It's very important. Yeah. Important to come out and to study, to have your own career, for both females and males. But I feel women should be independent, so that they can live their life the way they want to. Exactly. Yes, definitely. It's very important for a woman to be independent. The Reliance Foundation is dedicated to empowering students from all backgrounds, helping them reach their full potential and excel academically. Whether your passion lies in science, the arts, technology, or any other field, the scholarship is your gateway to making significant strides. I congratulate you both for achieving Reliance Foundation undergraduate scholarship. Thank you so much for being here. 93.5 Red FM. बजाते रहो